Last class we were discussing about Fazan's rules for polarizability, that how a particular cation and anion size and the oxidation number of a metal can differ the polarizability power of a particular compound basically. Today we will discuss about Vesper theory. Vesper theory is basically given for describing the structure of different type of elements, different type of compounds. Vesper theory is valence cell electron pair repulsion theory. V for valence, S for cell, E for electron, P for pair repulsion theory. So, symmetry of the molecules. Symmetry means that a particular compound can exist as linear, as trigonal pyramidal, as tetragonal pyramidal, as trigonal bipyramidal. Different type of structures a particular compounds can have. So, we have to study the symmetry of molecule. It is the relative arrangement of bonded atom in the molecules. So symmetry क्या है? Symmetry is the arrangement of bonded atoms in the molecules. Okay, the way in which the bonded atoms direct themselves around the central atom is basically described by this theory. So, how the atoms in a molecules are bonded and in a space how they are arranged is given by Vesper theory. This theory is given by Sidgwick and Febble. In this only the valence electron participation in bond formation, वैसे भी Lewis and Costel approach में हमने पढ़ा था that only the valence cell electron means outermost cell electrons are participated in a bond formation. So the bonded atom around central atom will have repulsion between them. So on the basis of repulsion between the electrons or between the atoms present in a molecules, we are describing the symmetry of a particular molecules, which are given by valence cell electron pair repulsion theory. That's why this is known as valence cell electron pair repulsion theory, because we have to see the repulsion between the bonded atoms around the central atom. Okay, now we can say the structure of BF3 molecules. The molecules or the atoms in a molecules are arranged in a way that the repulsion has to be minimum. कम से कम रिपल्शन हो भाई तो उसको हम सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन या सबसे बेस्ट ज्योमेट्री बोलते हैं किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की. मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम स्टेबिलिटी रूल याद रखना. Okay, now the say for example if you have a BF3 molecule, in BF3 molecules you can see that boron is surrounded by fluorine in a triangular planar way, means F is present around the boron in a way that it is the edges of a triangle. If you have a triangle, then we are putting boron at the center of triangle and fluorine at the edges of the triangle, then we will find it out there has to be a minimum repulsion between the fluorine molecules. So to minimize the repulsion, the fluorine direct them around the boron in such a way as shown in figure. The angle between B, F and F is 120 degree, so that there has to be minimum repulsion. This is a particular arrangement in which the repulsion is very less. If we try to arrange if we try to make angle like 119, one of the angle and other angle 121, then you will find that repulsion increases. That means that state or that particular arrangement is not stable. Okay, so what are the postulate of Vesper theory? The basic idea behind it that it is that bonded atoms in molecules adopt a particular arrangement in a space around the central metal atom which keep them as far as possible. Means what? The particles are arranged in a molecule in a way there has to be a maximum space. Maximum space means minimum repulsion and maximum stability. So the postulates are the shape of molecules depends upon number of valence electrons.
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं भी उनके ऊपर डिपेंड करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया था आपको, जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में उन्हें बॉन्ड पेयर बोलते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें लोन पेयर बोलते हैं। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑक्यूपाई दिस पोजिशन सच एज टू मिनिमाइज द रिपल्शन। चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, दे हैव टू बी इन द स्पेस इन अ वे दैट repulsion between the pair of electron has to be minimum. The valence cell is taken as sphere in which surrounding atom takes place as far as possible from each other. Means what? वैलेंस सेल को हमने स्फीयर में लेना है और एटम्स को हमने ऐसे लेना है कि वे एक दूसरे से जितना दूर हो सकते हैं उतना रहें। द रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज गिवन एज। सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होता है भाई? लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और फिर बॉन्ड पेयर में। मतलब अगर आपके पास दो लोन पेयर्स हैं तो वो दो लोन पेयर है, पेयर का मतलब जोड़ा भाई, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सो दो लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन है तो वो मैक्सिमम रहेगा। दो लोन पेयर्स के बीच में है तो मैक्सिमम, अगर बॉन्ड पेयर के बीच में तो मिनिमम, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में तो इन बिटवीन रहेगा। द रिपल्शन फोर्स डिक्रीजेज एट द डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम इंक्रीजेज, देयरफॉर बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। अब रिपल्शन कम होता जाता है जैसे डिस्टेंस जो है बॉन्डेड एटम्स की बढ़ती जाती है, और बॉन्ड एंगल क्या है, इससे बढ़ता जाता है। यू विल अंडरस्टूड दिस इन पर्टिकुलर इमेज. So you can see, if we have zero lone pair, this is an important thing. If we have zero lone pair and the symmetry of the molecule is linear, इसमें क्या रहेगा, अगर आपके पास A सेंट्रल एटम है और X2 जो है वो बाहर के एटम, और इसमें लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं है, तो आपके पास जो ज्योमेट्री रहेगी वो लीनियर रहेगी। सेकंड, अगर आपके पास AX3 है और लोन पेयर नहीं है, तब आपके पास कौन सी ज्योमेट्री हो सकती है भाई? ट्राइगोनल प्लेनर। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज ट्राइंगल। ओके, अगर आपके पास एक बॉन्ड पेयर है, सॉरी दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री कैसी रहेगी? बेंट शेप, क्योंकि वो अपनी शेप को थोड़ा सिकुड़ कर लेगा, एंगल जो हो लेस देन 20 डिग्री हो जाएगा। angle has to be, angle is greater than 120 degree. Now next is, अगर आपके पास AX2 था, AX3 था, अगर आपके पास AX4 हो तो तब आपके पास ज्योमेट्री कैसी रहेगी? नो लोन पेयर के लिए, अगर लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अगर दो लोन पेयर हो तो बेंट शेप। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे, अगर आपके पास AX5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या रहता है अभी? आपके पास एक ट्राइंगल रहती है शेप में, उसके ऊपर एक पिरामिड, उसके नीचे एक पिरामिड। आई विल गिव यू एनिमेशंस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर्स। अगर आपके पास एक लोन पेयर है तो ये हो जाएगा, अगर आपके पास दो लोन पेयर है तो टी शेप हो जाएगा भाई। क्यों? यहाँ से यहाँ आपके पास एक टी बन रही है। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आपके पास 3 लोन पेयर है तो लोन पेयर ऐसे रहेंगे, ये कैसा हो जाएगा? लीनियर शेप हो जाएगा जैसा पहले था। नाउ इफ वी हैव AX6, अगर आपके पास AX6 है, मतलब आपके पास 6 एटम सराउंड कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तब आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। कैसी रहेगी? ऑक्टाहेड्रल। और एक लोन पेयर है और 5 बॉन्ड पेयर है तो स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल बोल सकते हैं आप इसे। अगर 2 लोन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर, अगर 3 लोन पेयर है तो अगेन टी शेप्ड। ओके, अगर 4 लोन पेयर है तो लीनियर रहेगी। So when we will discuss about the different structures of different atoms, then we will know that how the Vesper theory is explaining all the structures of molecules in a very nice way, so that the repulsion between the atoms is minimum. So valence cell electron pair repulsion theory, this is all about valence cell electron pair repulsion theory, that if we have AX2, this AX2 में नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं रहेंगे, आपके पास स्पेस कैसा आ जाएगा? लीनियर। इफ वी हैव AX3,
आपके पास अगर लोन पेयर नहीं है तो ट्रायगोनल प्लेनर, अगर एक लोन पेयर है तो कैसा रहेगा, बेंट शेप रहेगी। बेंट शेप कैसे भाई, क्योंकि अगर आपके पास ए है, ए के साथ यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर कौन से होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये रिपल्शन की वजह से बेंट शेप बना देंगे। ऐसे ही डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस पिक्चर्स में गिवन है, यू विल ट्राई टू सी दिस पिक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर, देन यू विल फाइंड इट आउट देयर हैज टू बी मिनिमम रिपल्शन बिटवीन द बॉन्डेड एटम and between the lone pair of electrons. So next is hybridization. This is also one of the attempt for describing the structure of particular compounds. There are few limitations of Vesper theory. We will discuss limitations of each and every theory in a separate video. We will know that अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है भाई दो चीज़ों से मिलके बनना किसी एक चीज़ का। तो ऐसे ही अगर हमारे पास जो आउटर मोस्ट सेल है किसी भी पर्टिकुलर मेटल एटम का या फिर एटम का, आपके पास आउटर मोस्ट सेल है, उसके इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी एक पर्टिकुलर सबसेल में प्रेजेंट है, से फॉर एग्जांपल एस में, और वो दूसरे सबसेल के साथ कंबाइन करते हैं, से फॉर एग्जांपल पी, एस पी के अगर कम्बिनेशन होता है तो हमारे पास उनकी ओवरलैपिंग से, उन दोनों के कम्बिनेशन से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, जिसको हम एस पी हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। सो वी नो दैट ऑर्बिटल्स ऑफ लास्ट सेल ओवरलैप विद ईच अदर। हमें पता है कि ऑर्बिटल्स जो लास्ट सेल के हैं एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। द ओवरलैपिंग दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक साइड वाइज ओवरलैपिंग। अगर आपके पास ओवरलैपिंग ऐसे हो तो उसको बोलते हो हेड टू हेड ओवरलैपिंग, अगर आपके पास ओवरलैपिंग ऐसे हो तो इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हमारे पास क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड। दो टाइप के बॉन्ड होते हैं भाई, सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग, अगर दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन जो सेल है आउटर मोस्ट सेल उसको क्रॉस कर रहे हैं, तब आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर वो लैटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं भाई साइड वाइज ओवरलैपिंग से, अगर वो साइड वाइज ही ओवरलैप कर रहे हैं तो उसे पाई बॉन्ड बोलते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस बिटवीन विच हैज सेम एनर्जी, उन्हीं ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होगी जिनकी एनर्जी सेम होगी। इन केस orbitals have different energy, they cannot combine. Hybridization is what? Is the intermixing of orbitals of slightly different energies so that they redistribute energy and gives rise to new set of orbitals which are similar in shape and energy. Hybridization में intermixing होती है orbitals की, and they distribute their energy, redistribute their energy to give rise to new set of orbitals that are similar in shape and energy. Means what? We have to intermix the orbitals, and that intermixing, if there is a slight difference between the energies, they redistribute the energy and gives rise to new set of orbitals which have सिमिलर शेप एंड एनर्जी। मीन्स जैसे हमने एस और पी को कंबाइन करा, एस पी से एक इंटरमिक्सिंग से ऑर्बिटल बना, तो एस और पी की एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन एस और पी जो एस पी जो ऑर्बिटल्स बने, जितने ऑर्बिटल्स को हम कंबाइन करेंगे उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखें भाई। तब आपके पास जो एस पी ऑर्बिटल बना, अगर मान लिया एक एस और एक पी ने कंबाइन किया तो दो ऑर्बिटल्स बने, तो उसमें आपके पास क्या रहेगा, एस पी के अलग अलग ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग थी, लेकिन एस पी बनने के बाद एनर्जी जो है वो सेम रहेगी और शेप भी सेम रहेगा। यू कैन सी दिस ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर example. Let us say explain this on the basis of permotion effect. So what is permotion effect? If we have carbon 1s2 2s2 2p2 is ground state electronic configuration. So what we do is हम एक जो आपके पास 2s में इलेक्ट्रॉन था उसको हम एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाता है। ओके, 1s2 2s2 2p2। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद यहाँ पे 2s2 इलेक्ट्रॉन से भी
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 4 आपके पास ऑर्बिटल्स बच जाते हैं, जिन ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ऐसे आपके पास कार्बन जो है 4 एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, इसको टेट्रावेलेंट बोलते हैं भाई। सो करेक्टरिस्टिक्स क्या है हाइब्रिडाइजेशन के? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन। ये मैंने अभी बता दिया भाई, अगर एक एस और एक पी कंबाइन करता है तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे, एक एस और 2 पी कंबाइन करते हैं तो उसे sp2 बोलेंगे और 3 ऑर्बिटल बनेंगे। ओके, द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्वल इन एनर्जी एंड शेप। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि उनकी एनर्जी जो है और शेप जो है वो सेम रहेगी। The hybrid orbitals are more effective in forming bond as compared to pure atomic orbitals. एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर मैं S और P ऑर्बिटल्स को अलग अलग कंबाइन करके अलग अलग बॉन्डिंग की कोशिश करता हूँ तो दीज आर नॉट मच इफेक्टिव। बट इफ़ आई हैड टू मेक देम इंटरमिक्स, sp हाइब्रिड को मैंने इंटरमिक्सिंग के साथ अगर कंबाइन करके बॉन्ड फॉर्मेशन की कोशिश करी तो बहुत ईजिली बन जाता है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक रोटेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्पेसिफिक रोटेशन होते हैं, मीन्स ज्योमेट्री और शेप। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन गिव्स अस द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है उससे हमें शेप मिलता है मॉलिक्यूल का। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट कैन ऑल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक ऑल पार्टिसिपेट की हर एक चीज़ पार्टिसिपेट कर सकती है हाइब्रिडाइजेशन, हर एक ऑर्बिटल्स। Now conditions, the only valence orbital participate. Now the answer behind that is सिर्फ जो outermost cell में इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट पार्टिसिपेट शुड हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। परमोशन इज नॉट नेसेसरी, परमोशन जरूरी नहीं है होगा। The unpaired as well as fully filled orbital can also participate. Fully filled orbitals भी participate कर सकते हो और unpaired भी participate कर सकते हैं। So we will discuss now what is sp hybridization. In this case, one s and one p combine as shown below. Means what? आपके पास एक s और एक p। s आपको पता है सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, p आपको पता है क्या होता है, डम्बल शेप स्ट्रक्चर होता है। Now when these two combines, there is a formation of 1s और 1p में 50% s करेक्टर है, 50% p करेक्टर है, क्योंकि एक s और एक p है। तो आपके पास ऐसा ऑर्बिटल बन जाएगा भी। इसमें जो ये स्मॉल लोब्स हैं ये s को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये p को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं BeF2 की, तो बेरिलियम जो है 1s2 2s2, 1s2 हमें इंक्लूड नहीं करना क्योंकि वो इनर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, हमें 2s2 को करना है इंक्लूड। तो अगर मैं 2s को p में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, s से p में प्रमोशन कर दिया हमने इलेक्ट्रॉन का, एक s और एक इलेक्ट्रॉन p में रह गया, तब आपके पास 2 फ्लोरीन एटम यहाँ पे आके कंबाइन कर सकते हैं। तो ये कंबाइन करते हैं तब आपके पास क्या बनता है, BeF2। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए भाई, एक s और एक p कंबाइन होता है तो स्ट्रक्चर हमेशा लीनियर रहेगा और एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो। नेक्स्ट इज sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p कंबाइन करते हैं। s का करेक्टर कितना होता है, 33% और p कितना होता है, 67%। जैसे मैं बात करता हूँ BF3 की, BF3 में आपके पास एक s और एक p कंबाइन करने के बाद बोरोन 2s2 2p1 होता है भाई, 2s2 2p1 सॉरी 2s2 2p1 है आपके पास, और फ्लोरीन 2s2 2p5 होता है। तो बोरोन से फ्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके, जैसे इसमें दिखाया हुआ है एक s और 2p, तो आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और ये सारे मिलके हाइब्रिड बनके एक ट्राइगोनल पेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि आपने इसमें देखा भी है। हमने जिस टाइम वेस्पर थ्योरी डिस्कस करा उस टाइम भी देखा था दैट BF3 इज व्हाट इज हैविंग स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट इज sp3 स्ट्रक्चर। sp3 में एक s और 3 p कंबाइन करते हैं, एक s का कंट्रीब्यूशन 25%, p का कंट्रीब्यूशन 74%। कार्बन जो है भाई वो 1s2 2s2 2p2 उसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाइड्रोजन 1s1 होता है। तो यहाँ पे हम प्रमोशन कराते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो एक s में और 3 p में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस वजह से 1s जो आपके पास
हाइड्रोजन एटम है वो इनके साथ कंबाइन करता है और CH4 बनाता है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है भाई 109.5 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर में कितना होता है 120 डिग्री। अब 109.5 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। Okay, so this is about hybridization sp2 and sp3. Now there may be the hybridization of sp3d, sp3d2 and sp3d3. sp3d में 4 ऑर्बिटल्स का, एक 3 और एक 4 है, 5 ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे भी, और उन 5 ऑर्बिटल्स से जैसा कि हमने देखा था पीछे वेस्पर थ्योरी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के हिसाब से। अगर हमने 6, जैसे sp3d2 है, तो अगर हमारे पास 6 ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ओके, जैसा कि मैंने पीछे दिखाया हुआ है। सो हाइब्रिडाइजेशन में ऐसे, जैसे हमने sp2 और sp3 को डिस्कस करा, ऐसे ही sp3d, sp3d2 पॉसिबल है और sp3d3 भी पॉसिबल है। ओके, क्योंकि एक S3p और एक D sp3d, एक S3p और 2D sp3d2, और एक S3p और 3D is giving you sp3d3 orbitals. Okay, in next lecture we will discuss about that molecular orbital theory and valence bond approach. So okay.